لیکن آج ایک مجموعی پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا جو مثبت ثمرات تھے ہمارے ان فیصلوں کے، کچھ مشکل فیصلے کیے ہم نے، اس کے مثبت اثرات حالیہ دنوں میں اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا فائدہ کراچی والوں کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ بہتری کا، ترقی کا، تعمیر کا سفر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کارکن، میئر، ڈپٹی میئر، ہماری یونیورسٹی چیئرمین صاحبان، کونسل کے اراکین انشاءاللہ اسی طریقے سے جاری رکھے گا۔ میں نے آج کی پریس کانفرنس میں کچھ تفصیلات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ مختلف فیزز میں ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے جو مالی وسائل درکار ہوتے ہیں وہ سب سے ضروری ہے۔ اگر آپ کو شہر میں ترقیاتی کام کرنا ہے تو آپ کو پیسے درکار ہیں، اگر آپ کو ادارے اسٹیبلش کرنے ہیں تو آپ کو پیسے درکار ہیں، اگر آپ کو اپنے ملازمین کے حقوق ادا کرنے، ان کی تنخواہیں، واجبات ادا کرنے ہیں تو آپ کو وہ وسائل درکار ہیں۔ آپ نے عمومی طور پر سیاسی گفتگو میں صرف ایک ہی چیز سنی تھی کہ ہمارے جو ماضی کے میئر تھے، ماضی کے ایم سی کی انتظامیہ تھی، وہ کہتی تھی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، اختیارات نہیں ہیں، ہم سے سوال نہ پوچھو، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم سے کچھ نہ پوچھو۔ ہم نے بار بار آپ کو گزارش کی کہ نظام کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہوتا، نظام میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن بہتری کے لیے آپ کو اپنے ذریعے سدھار لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے بہتری کا سفر سٹارٹ کرنا ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مالی اعتبار سے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے جو حالات ہیں پچھلے 1.5 سالوں میں، اس میں خاطر خواہ بہتری آئی ہے، جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں، ڈپٹی میئر صاحب یہ کہتے ہیں، ہماری قیادت یہ کہتی ہے کہ اختیارات کا ایشو نہیں تھا، نیت کا ایشو تھا۔ 2019 جب متحدہ قومی موومنٹ کے میئر کراچی میں براجمان تھے، پورے سال میں جو کل آمدنی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی تھی پورے سال کی، وہ 870 ملین تھی۔ 87 کروڑ روپے اکٹھا کیے گئے 12 ماہ 2019 کے فائنینشیل ایئر۔ کتنے؟ 870 ملین، یعنی کہ 87 کروڑ روپے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے موجودہ مالی سال میں، یعنی کہ 7 ماہ میں، 1 جولائی 2024 سے لے کے 31 جنوری 2025 تک، یہ 7 ماہ ہیں۔ اس 7 ماہ کے اندر ہماری آمدنی بڑھ کے 2.3 ارب روپے ہوئی ہے۔ 2.3 ارب روپے ہوئی ہے، جس میں سے 2.14 ارب روپے ہمارے اکاؤنٹ میں آ چکا ہے۔ اس وقت بلدیہ عظمیٰ کراچی کے اکاؤنٹ میں 7 ماہ میں آیا ہے۔ یہ میں آپ کو چارٹ لے کر آیا ہوں، گراف لے کر آیا ہوں، دکھا دیں۔ یعنی کہ 300% آمدنی میں، کے ایم سی کی آمدنی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، جس کو کچھ متعصب لوگ کراچی دشمن کہتے ہیں اور اپنے آپ کو محسن کراچی کہتے ہیں، فرق ظاہر ہے۔ یہ 300 گنا جو آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، جو آج پیسے اکٹھا ہو کے کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں آئے، سلمان کے مرتضیٰ کرم اللہ کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے۔ یہ جو پیسے آئے ہیں یہ 2019 میں بھی آ سکتے تھے، یہ 2018 میں بھی آ سکتے تھے، 2020 میں بھی آ سکتے تھے، اگر وسائل کو بہتر کرنے کا سوچا ہوا۔ وہی اختیارات، وہی قانون، لینڈ ڈپارٹمنٹ کی ریکوری بہتر ہوئی۔
वही कानून, वही इख्तियारात, स्टेट डिपार्टमेंट की आमदनी बेहतर हो। एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट हमारा, जो कि बीटीएस टावर को भी लुक आफ्टर करता है, जो मादी में हम इकट्ठा नहीं कर पाते थे, जो लैंड यूटिलाइजेशन को भी लुक आफ्टर करता है, उसकी आमदनी में इजाफा हुआ। MUCT की मद में जो साल भर की आमदनी, म्यूनिसिपल टैक्स की साल भर की आमदनी 15 करोड़ रुपए KMC के अकाउंट में आती थी। 15 करोड़ रुपए ये हमने इस साल इकट्ठा किया। 15 अगस्त से हमने इकट्ठा करना शुरू किया और 31 दिसंबर तक, 31 जनवरी नहीं, क्योंकि वो चेकिंग बल्कि 30 नवंबर तक, सॉरी, यानी कि आधा महीना अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरा 3.5 माह की आमदनी हमारी 1 अरब रुपए हुई। 1 अरब रुपए, और वो 1 अरब रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं, KMC के अकाउंट में आए हैं। तो जो लोग कहते थे ना कि के इलेक्ट्रिक से रिकवरी मुर्तजा वहाब और सलमान नहीं कर पाएंगे, वो पैसे जो शहर के अवाम की मिल्कियत है, ये शहर के अवाम की अमानत है, वो हमारे अकाउंट में मुंतकिल हो गए हैं। और अगला दिसंबर जनवरी की पेमेंट रेकनसाइल हो रही है। दिसंबर इंशाल्लाह हमको अगले हफ्ते मिल जाएगा, और जनवरी उसके बाद गालिबन कोई 15 से 20 दिन में मिल जाएगा। ये वो तमाम चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर कोई रुकावटें बहुत हैं। हर टाउन तंग करता है, आप सबको पता है। हमारे वसाइल के ऊपर बहुत सारे टाउन काबिज हैं, हमारी रेट को चैलेंज किया जाता है, लेकिन हमने हार नहीं मानी, लगे रहे, और ये हमने अपनी आमदनी में इजाफा किया। अब जब आमदनी में इजाफा होता है तो उसके जो समर है वो आवाम को मिलने हैं। वो समर कैसे मिलेंगे आवाम को? वो तरक्याती कामों के जरिए मिलेंगे। जो तरक्याती काम इस शहर के आवाम का बेसिक राइट है, बुनियादी हक है उनका, जो माजी की हमारी KMC की क़यादत ने शायद उस तरीके से वफा नहीं किया। उस वादे की तकमील के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची 751 स्कीम्स के ऊपर काम कर रही है। 751 स्कीम्स के ऊपर इस वक्त काम कर रही है, जिनमें से इंशाअल्लाह 30 जून 2025 तक अगले 5 माह में 403 स्कीमों को हम मुकम्मल करेंगे। 403 स्कीमों को हम मुकम्मल करेंगे, और अगले साल के बाद जून 2026 तक इंशाअल्लाह मजीद 348 स्कीमों को हम मुकम्मल करेंगे। यानी कि 1000 से ऊपर की डेवलपमेंट की स्कीम्स, जो कि 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती हैं और कहीं कहीं वो 7, 8, 10 करोड़ तक जाती हैं, इस तरह की 1000 से ऊपर स्कीम्स अगले 2 सालों में, 2 साल नहीं, अगले 1.5 सालों में इंशाअल्लाह जून 2026 तक हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। और वहाँ आपको बुलाते हैं, आप दोस्तों के जरिए आपको दिखाते हैं वो काम क्या होता है। और मैं इस बात को एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि ये 1000 स्कीमें हैं, ये बुनियादी तौर पर KMC का काम नहीं है, ये वो गली महल्ले की स्कीम्स हैं। अगर लियाकताबाद में गलियां बन रही हैं, अगर यूसुफ गोड में गलियां बन रही हैं, अगर लियारी में, बल्दिया में, मंगोपीर में, मलीर में, जाफर तैयार सोसाइटी में, कोरंगी में, सदर में, वो अंदरूनी गली मोहल्ले के अंदर जाके पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, तो ये काम बुनियादी तौर पर KMC का नहीं है, ये उन टाउन्स को करना है। लेकिन चूंकि टाउन्स वो नहीं कर पाते काम, चूंकि टाउन्स वो काम नहीं कर रहे, बल्दिया उज़्मा कराची वो काम कर रही है। और इंशाअल्लाह ये कमिटमेंट है कि 751 स्कीमें इस साल, अगले 5 माह में 30 जून तक, और मजीद 403 स्कीमें, मजीद 348 स्कीमें हम अगले साल जून 2026 तक इंशाअल्लाह मुकम्मल करके देंगे।
میں نے ہمیشہ, ہماری قیادت نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ فیصلے وہ کرو جس کے مثبت اثرات لمبے عرصے کے لیے نظر آئے. آپ سب جانتے ہیں کہ جو ملکیت بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ہے, اس ملکیت کے ساتھ کس طریقے سے زیادتی کی گئی. ایسی ایسی اصطلاح اس شہر کے لیے کریٹ کی گئی, فلاں کٹنگ, یہ کٹنگ, وہ کٹنگ ادھر گیا, کٹنگ ادھر, کٹنگ بھی ہوتی تھی شہر کے اندر. ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بڑی بڑی پراپرٹیز ہماری موجود ہے اس کے اوپر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ BOT بیسس کے اوپر ڈیولپمنٹ کریں. یعنی کہ خود فیصلہ جب ہم نہیں کرتے تو جن لوگ جن کے ذاتی مفاد ہوتے ہیں وہ آ کے اس کے اوپر قابض ہوتے ہیں. کوئی بازار لگ جاتا ہے, کوئی پارکنگ ہو جاتی ہے, کوئی اور اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں, نہ ہم زمین کو بیچیں گے اور نہ اس اثاثے کو ایسے ہی پڑے رہیں گے. ہم نے کہا BOT بیسس پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, BOT ہے بلڈ آپریٹ ٹرانسفر. زمین ہمارا اثاثہ ہے, پرائیویٹ سیکٹر آئے گا, وہ اپنا خرچہ کر کے عمارت بنائے گا. آمدنی جو ہوگی اس میں ہمارا بھی شیئر ہوگا, ان کا بھی شیئر ہوگا. اور وہ شیئر جو ہے ون ٹائم نہیں ہوگا, آپشن نہیں کرے گا کہ ایک بار آپ نے زمین بیچی, بہت سارے پیسے مرتضی آباد کے دور میں KMC کو آ گئے اور پھر اگلا جو میئر ہے وہ پیسے ڈھونڈ رہے ہیں, اثاثے ڈھونڈ رہے ہیں. ہم نے کہا نہیں, ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم ان کو وہی رینٹل ییلڈ پہ جائیں گے تاکہ آج اگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ 25-26 کروڑ کی آمدنی لے کر آیا ہے تو اس آمدنی کو مزید بڑھائیں, 50-60 کروڑ تک لے جائیں. اور یہ اب ہم الحمدللہ کرنے جا رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, قانون کے مطابق. اخبار میں پچھلے دنوں ایڈ آیا, وہ پراپرٹی جو چھپی ہوئی پڑی ہیں, آپ سمجھتے ہیں پرائیویٹ پراپرٹی, بڑے لوگوں کی نظریں تھیں ان کے اوپر. ہم نے کہا نہیں, اور ہم نے پروسیس اسٹارٹ کر دیا ہے کہ پر امید ہوں کہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اگلے 1 سے 1.5 ماہ میں اس کی پروسیس سے فائنلائز کرے گا اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم اس کو مزید آگے بڑھیں گے. کچی آبادیوں کے حوالے سے پاکستان سے دنیا کی واحد کچی آبادی ہوگی جہاں پہ پلازے بھی بن جاتے ہیں, جہاں پر پیٹرول پمپ بھی ہوتے ہیں. ہے کچی آبادی, غالباً 55-56 کچی آبادی ہماری KMC کی ہیں. پیٹرول پمپ بنے ہوئے, وہ کروڑوں روپے کما رہا ہے, KMC کو قابل ہیں لوگ. ہم نے فیصلہ کیا جس طرح بہت سارے ممالک میں ہوا ہے, اور یہ بہت بڑا سنگین پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں آئندہ چند روز میں سٹارٹ ہونے والا ہے. ہم کچی آبادیوں کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں انٹو پراپر ڈیولپمنٹ, اور اگین وتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, کہ ہم آباد جو کہ ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہے ان کے پاس میں گیا تھا, وہاں پہ کچھ آپ دوست بھی موجود تھے. وہاں میں نے ان کو آفر کیا کہ جی ہم اپنی کچی آبادیوں کو ٹرانسفارم کریں جیسے ممبئی میں دھاراوی میں ہوا, جیسے جکارتا کے اندر ہوا, کہ وہ کچی آبادی کے لوگوں کو حقوق دے, پراپر ان کو ڈیولپ کر کے دے, سرکار کا خرچہ نہیں ہو, لیکن کم از کم اچھا لگے. ہم ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں, پہلی چیز شاہ فیصل پہ جو آتی ہے وہ خمیشو گوٹ غالب KMC کا کچی آبادی. حال جو شہر میں انٹر ہوتا ہے اس کا ایک امپریشن برا پڑتا ہے. تو ہم نے اب یہ ٹرانسفارم کرنے کا فیصلہ کیا, اور انشاءاللہ آئندہ چند روز میں ہمارا پہلا MOU اس حوالے سے ایگزیکیوٹ کر لیا جائے گا. 2 جگہوں کا ہم نے انتخاب بھی کیا کراچی شہر کے اندر, جن کے اوپر یہ کام انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے, اور اپنے غریب لوگوں کو, جو بلاول صاحب کا وعدہ ہے روٹی کا اپنا مکان, چھت دلانے کے 21 لاکھ گھر ہم جہاں سندھ کے باقی اضلاع میں بنا کے دے رہے ہیں سیلاب متاثرین کے لیے, ویسے کراچی شہر کے لیے ان کو کچی آبادی سے نکال کے پراپر ان کا ایک خرچہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا, ان کو ہم اچھی جگہ پہ اچھے وسائل کے ساتھ انشاءاللہ منتقل کریں گے. کلائمیٹ چینج کی بڑی بات کی جاتی ہے.
सब कहते हैं कि क्लाइमेट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कोई बॉर्डर, कोई बाउंड्री नहीं है, इसके लिए कोई होलिस्टिक स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए। इस हवाले से भी बल्दिया उज़्मा कराची ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसके लिए मैं आज ऑफर करना चाहूँगा। पहले मैं बता दूँ हमने क्या किया है, फिर मैं आपके जरिए लोगों से अपील करूँ। हमने जो बल्दिया उज़्मा कराची जिसके पास वसाइल नहीं थे, पैसे नहीं थे, उसने 100 मिलियन रुपीज़ का एक क्लाइमेट इंडाउमेंट फंड स्टैब्लिश किया। किसी से पैसे नहीं लिया, अपने पैसे लगाए। यानी कि कराची शहर के अंदर क्लाइमेट चेंज के असरात, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए पहला इनिशिएटिव बल्दिया उज़्मा कराची ले रही है, और 100 मिलियन का सीड मनी हमने फराहम कर दिया है। मैं फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, कराची में बसने वाले बैंक्स, कंपनीज, इंडस्ट्रीज से, एनजीओ से, फलाही इदारों से, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी से कोई ऑफर करना चाहूँगा कि इस क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए हमारी मदद करें, और हमारे इस इंडाउमेंट फंड में हमारे साथ हैं। मिलकर विजन ये, टारगेट ये है कि लियारी नदी और मलीर नदी ये गेम चेंजर कराची शहर के लिए हो सकता है। जमीन जरखेज है, पानी अवेलेबल है, वहां पर भैंसों के बाड़े तो बन जाते हैं, कोई नहीं रोकता। कुछ लोग अपने गली मोहल्ले को छोड़ के किसी और शहर से, किसी और सूबे से, किसी और मुल्क से भी आके वहां बस जाते हैं, गाड़ियां वहां पार्क हो जाती हैं। लेकिन वो एक बेहतरीन जगह है जंगल क्रिएट करने के लिए। और कुछ कुछ जगहों पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आपको याद होगा, लियारी नदी में अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह किया, कुछ मैंने भी किया, कुछ चीफ मिनिस्टर साहब ने भी किया, उस जमाने में नासिर शाह साहब वजीर बल्दियात थे, उन्होंने भी किया। इसको मजीद बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है, जिसके लिए मैं ये ऑफर कर रहा हूँ कि हमने पहल कर दी है। 100 मिलियन का इंडाउमेंट फंड हमने स्टैब्लिश कर लिया। बैंक्स, कंपनीज, इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो इदारा इस शहर से पैसे कमाता है, स्कूल कॉलेजेस के तलबा जिन लोगों को इस शहर से मोहब्बत है, फलाही इदारे, मैं उनको ऑफर करना चाहता हूँ कि आइए साथ बैठिए और अगले 5 साल का विजन लेकर चलें कि लियारी नदी और मलीर नदी पे जहाँ जमीन अवेलेबल है वहां पर हम मकामी दरख्त लगाएं। हम गैर मकामी नुमाइंदे मकामी दरख्त लगाएं, नीम लगाएं, गुलमोहर लगाएं, बादाम लगाएं, चीकू लगाएं, अमरूद लगाएं। सब्जियां तो अभी भी उगती हैं वहां पे, तो क्यों ना हम ये चीजें करें और वो जो फल हुआ है फिर वो गरीबों को दे दें। तो ये भी एक मैं ऑफर करना चाहूंगा। पोलियो एक चैलेंज है हमारे माशरे के लिए, और पोलियो के अंदर बहुत सारे रीसेंट केसेस हमारे शहर में आए हैं, जिसके लिए वज़ीर आला सिंध, वज़ीर सेहत बार बार कोशिश कर रहे हैं कि इसको टैकल किया जा सके। ये वायरस बुनियादी तौर पर वाटर बोर्न वायरस है। बल्दिया उज़्मा कराची ने फैसला किया है कि जैसे हम आम तौर पर, अमूमी तौर पर सुनते हैं, बल्कि मेरा भाई जो हेल्थ रिपोर्टिंग करता है वो बताएगा कि हमारी ये ईस्ट की यूसी है, मरीन की यूसी, गुजरो, सबसे ज़्यादा केसेस वहाँ से आते हैं। तो हमने फैसला ये किया है कि हम अपनी इंतजामिया के साथ बैठ के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक यूसी को टेकअप करेंगे इस माली साल में, इस साल में, और वहाँ पे जो पानी सेवरेज की लिंकेज है उसको ख़त्म करेंगे, रिप्लेस करेंगे उसको, ताकि ये जो पोलियो का एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारी आने वाली नस्लों को अटैक कर रहा है, इसको हम काउंटर कर सके, इससे निकल सके। शहर के अंदर लोगों को तफरीह फराहम करने के लिए आपने देखा है कि चाहे कराची का चिड़ियाघर हो, सफारी पार्क हो,
फ्रेयर हॉल हो, बाग इब्न कासिम हो, बर्न्स गार्डन हो, यहाँ पर लोगों जोक दर जोक छुट्टियों पर आ रहे हैं। हफ्ता इतवार जुमे को बड़ा रश होता है। ये जो कमर्शियल एरियाज हैं या बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये बड़े अहम हैं इस हवाले से। मैं पिछले दिनों गया चिड़ियाघर, तो मुझे किसी ने बड़ा अच्छा एक मशवरा दिया। एक बच्चा वहां पर आया हुआ था, कहता है अंकल हम औरंगी से आ रहे हैं, हमें औरंगी में कोई ऐसी चीज कर देगा। तो हमें एक आइडिया आया कि क्यों ना ये लोकलाइज सॉल्यूशंस के ऊपर काम करें। तो हम ये कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स जो फूड एरिया जो है इसके ऊपर फोकस करना चाहेंगे, जिसके अंदर किमाड़ी के अंदर जो हमारी फिश मार्केट है उसको हम टेकअप कर रहे हैं। हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट है उसको हम टेकअप कर रहे हैं, और एम्प्रेस मार्केट जो है उसको हम टेकअप कर रहे हैं, और एक बल्दिया की हमारी फूड स्ट्रीट है इसको हम टेकअप कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे लोगों को उनके घरों के पास इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल, ताकि वो बआसानी इंजॉय कर सकें, लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। आखिरी चीज़ जिसके ऊपर अब मैं फोकस करना चाहूँगा, ये मैंने आपको बताया कि सारी रिफॉर्म बेस्ड काम थे। हम बेहतरी लाना चाहते थे, हमने सख्त फैसले किए, कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन हमने फैसलों के पीछे नहीं हटे, जिसके असरा फाइनेंशियली हमारे पास आना शुरू हुए। इंतजामी एतबार से दो चीज़ें मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा। पहली चीज़ है कि चूंकि बर वक्त फैसले नहीं किए जाते तो उसका नुकसान होता है, या गलत फैसले किए जाते हैं उसका भी नुकसान होता है। पेंशन हमारे केएमसी के मुलाजमीन का सबसे बड़ा इस वक्त इशू होता है, और इस वक्त जो हमारी कम्यूटेशन जाती है वो जून 2017 तक के मुलाजमीन जो रिटायर हैं उनको पे की गई। वैसे तो सारे शहर की हमारे ऊपर ये थोप दी गई है, हर टाउन कहते हैं कि मेयर डिप्टी मेयर के पास चले जाओ, मुलाजिम उनके हैं, ये कहते हैं हमारे पास चले जाओ। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेहतर बनाने का सिलसिला स्टार्ट किया, और जो केएमसी के पास वसाइल पड़े हुए थे उसको सही तरीके से हमने इन्वेस्ट किया, जिसका समर हमें मिलना शुरू हुआ कि हमारी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट अब मटीरियलाइज हो रहा है। और पहली ट्रांच हमारे पास 576 मिलियन रुपए की, 576 मिलियन यानी कि 57 करोड़ 60 लाख रुपए ये प्रॉफिट कमाया है हमने। ये पैसा हमारे पास कहीं से आमदनी नहीं है, हमारी पैसा पड़ा हुआ था, फैसला नहीं करते थे तो आमदनी की अपॉर्चुनिटी जो थी वो हमारे पास नहीं थी। हमने कहा हम इसको इन्वेस्ट करें, बर वक्त तौर पर इन्वेस्ट करें, और ऐसे इदारे के साथ इन्वेस्ट करें जो कि प्रॉफिट अच्छा दे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्मार्ट थिंकिंग, 576 मिलियन का प्रॉफिट बल्दिया उम्मा कराची को मिल रहा है, जिसका फैसला हमने किया है कि 576 मिलियन से जो हमारे मुलाजमीन की एक ग्रेजुटी है उसको हम पे करें। और अच्छी खबर ये है कि इस अमाउंट से मैं किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा हूं कोई पैसा। इस पैसे से मजीद मुलाजमीन की जो पेंशन ग्रेजुटी पे होगी अगले 9 माह की, यानी कि अप्रैल 2018 तक या गालिबन जून 2018 तक रिटायर होने वाले मुलाजमीन के पैसे हम देने में कामयाब हो गए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है मौजूदा केएमसी की क़यादत की, कि जो लोग आपके लिए मेहनत करते हैं उनको ये तसल्ली तो हो जब वो रिटायर होंगे उनको उनका हक मिले, और ये वो पैसा है जो उनका हक है, एक्चुअली वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बरवक्त फैसलों से ये फायदा हुआ, और अब गलत फैसलों का नुकसान बताता हूँ। लोग कहते थे इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमने अक्टूबर 2023 में एक अकाउंटिंग सिस्टम है जिसको कहते हैं सैप, वो मुतारिफ कराया केएमसी पहली बार। केएमसी पाकिस्तान की पहला बल्दियाती इदारा बना जिसके अंदर ये सैप अकाउंटिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया। इसका फायदा ये होता है कि मैनुअल सारा जो काम होता है ना, काम उतारा जाता है,
اس سے آپ نکل آتے ہیں. پہلے فیز میں وہ ملازمین جن کی ڈبل تنخواہیں تھیں, یعنی کہ وہ میرے بھی ملازم تھے, لیبر ڈپارٹمنٹ کے بھی ملازم تھے, کے ایم سی کے بھی ملازم تھے, انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے بھی ملازم تھے, کے ایم سی سے بھی تنخواہ لے رہے تھے, کے ڈی اے سے بھی تنخواہ لے رہے تھے. پہلے فیز میں ان ملازمین کی نشاندہی تھی. دوسرے فیز میں ہم نے کام کیا اور ہم نے کہا کہ ملازمتوں کا ریکارڈ بھی چیک کرنا چاہیے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2019 میں ملازمین کو کے ایم سی میں ریگولرائز کیا گیا, جس کا پروسیس سٹارٹ ہوا 2018 میں. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ لوگ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کیسی کیسی چیزیں کیا کیا اس شہر کے ساتھ کیا گیا ہے. 2018 میں ایک سمری انیشیٹ ہوتی ہے اور کہتے ہیں ہم جو ٹیمپرری ملازمین ہیں کے ایم سی کے, جو کانٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں, ان کو ہم ریگولرائز کر دیتے ہیں. 2018 میں ان کو ریگولرائز کر دیا جاتا ہے. پھر خیال آتا ہے یار کاؤنسل ریزولوشن تو پاس ہی نہیں, تو پھر وہ 2019 میں کاؤنسل ریزولوشن کو پاس کرانے کے لیے جاتے ہیں. 18 جون 2019 کو وہ کاؤنسل کی قرارداد منظور ہوتی ہے. میں ڈیٹ دے رہا ہوں آپ کو, ریکارڈ چیک کر لیجیے. 18 جون 2019 کو قرارداد میں وہ کہتے ہیں, جو سمری ہے, کہ 722 ملازمین کو ریگولرائز کر دیا گیا. اصول ہے جنہوں نے 3 سال کام کیا ان کو آپ ریگولرائز کر سکتے ہیں. یعنی کہ 2018 میں ریگولرائز کیا گیا تو 2015 میں کم از کم بھرتی ہوئی ہوگی, کم از کم. اس سے پہلے کی بھی ہو سکتی ہے بٹ کم از کم 2018 میں ریگولرائز کر دیتے ہیں. 2019 میں قانونی پروسیس مکمل کرنے کے لیے کاؤنسل میں آتے ہیں, اور کاؤنسلر کو کہتے ہیں, کرم اللہ عباسی صاحب اس کاؤنسل کے رکن تھے, کہتے ہیں جی 722 ملازمین کو ہم ریگولرائز کرنا چاہتے ہیں, یہ چٹھی ہے. کاؤنسل نے کہا ٹھیک ہے جی, ریگولرائز کر دیا ہے, وہ ریگولرائز ہو گئے. جب ہم فائل نکلواتے ہیں اور فائل دیکھتے ہیں اس کی, تو فائل میں اصولاً 722 نمبر لکھا ہونا چاہیے نا. اس فائل میں 722 کا نمبر نہیں لکھا ہوتا, یعنی کہ پہلے پیج پہ 722 ہے. جب نیچے لسٹ کو آپ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 722 نہیں 678 ہے. 722 کی منظوری دیتے ہیں, 678 کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے. جب ہم اپنے اکاؤنٹنگ سسٹم میں آ کے دیکھتے ہیں, SAP کا سسٹم جو ہم نے متعارف کرایا, جب اس کو جا کے ہم چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں بھائی, نہ 678 ہے, نہ 722 ہے, 937 ملازمین ہیں جن کو نے بھرتی کیا. 937. یہ کہتے تھے اختیارات نہیں ہیں. اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کیوں کہتے ہیں کے ایم سی ان کے پاس ہونی چاہیے. جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی جی بھائی, ہاں اس لیے کے ایم سی ان کے پاس ہونی چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہے. کراچی والوں کو بولے سوری ریڈر والے, میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا, میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, لیکن آ جاؤ نوکری میں دے. ویزا سسٹم آپ لوگ بار بار بات کرتے ہیں نا, آسرا دیا لندن کے ویزے کا اور دیا ویزا کچھ اور. یہ ہے وہ غلط فیصلے جس کی وجہ سے آج ہمیں تکلیف کا سامنا, پریشانی کا سامنا. اب مزید ایک اور مزے کی بات بتاتا ہوں. ایسے ایسے ملازمین ملے جو 2018 میں جب ریگولرائز ہوئے نا, وہ 18 سال کے نہیں ہوئے. ایک بچہ ماشاءاللہ پوائنٹ ہوا ہے 10 سال کی عمر میں. ابھی سب بتاؤں گا, اللہ معاف کرے, کہاں پہ ٹانکیں گی لوگوں. یہ حال ہے, یہ وہ رویہ ہے جس نے شہر کو irreparable harm پہنچایا ہے, اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. جب
कागजात देखे तो पता चला सबके अकाउंट 2018 में खुले। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय थे तो केएमसी में कोई कैश तनख्वाह तो नहीं मिलती, वो तो अकाउंट में जाती है। जब अकाउंट में तनख्वाह जाती है तो बैंक अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट कब खुल रहे? 2018। तकरीबन 200 ऐसे लोग हैं जिनका रिकॉर्ड फॉल्टी है, फॉल्टी है 200, जिससे तकरीबन कुछ 365 मिलियन रुपए का 36 करोड़ 50 लाख रुपए का केएमसी को नुकसान पहुंचा है। और ये नुकसान आज का नहीं है, क्योंकि पेंशन भी जाएगी, ग्रेजुएटी भी जाएगी। ये जब तक अल्लाह उनको हयाती दे, जिंदगी दे, सेहत दे, ये वो लाइबिलिटी है जिसको मुर्तजा वहाब और मुर्तजा वहाब के बाद आने वाले कई मेयर और एडमिनिस्ट्रेटर इनहेरिट करेंगे। और फिर जब उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, तो वो एहतजाज करेंगे बाहर। ये कारनामे किसके हैं? इन लोगों के हैं। अगर आप सोचें, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन मैं गोश गुजार कर रहा हूँ कि अच्छे फैसले और बुरे फैसलों का डिफरेंस, बर वक्त फैसलों का और फैसले ना करने का डिफरेंस। चूंकि पीपल्स पार्टी एक इंसान दोस्त सियासी जमात है, हम किसी से उसका रोजगार नहीं छीनना चाहते। मैंने ये अहकाम दिए हैं कि इसकी प्रॉपर जांच की जाए, तमाम रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाए, ताकि जो बात की जा रही है वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो। उसके बाद इस मामले को अपनी काउंसिल में लेके जाएंगे। उस काउंसिल में पीपल्स पार्टी भी है, जमात इस्लामी भी है, पीटीआई भी है, टीएलपी भी है, नून लीग भी है, जेयूआई भी है। वो काउंसिल फिर फैसला करेगी कि आगे का लाएमल क्या है, और उस फैसले को फिर एज इट इज हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। ये सूरत हाल, ये तफसीलात आपको देने का बुनियादी मकसद था। नीयत साफ, मंजिल आसान। When there is a will, there is a way। आप काम करना चाहें तो काम हो सकता है, काम किया जा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त शहर कराची में काम हो रहा है। आपका सियासी इख्तिलाफ, नज़रियाती इख्तिलाफ मुझसे, सलमान से हो सकता है, लेकिन शहरियों को कम अज़ कम अब ये नज़र आ रहा है कि वो जो बातें की जाती थी वसाइल की, इख्तियारात की, उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। अगर काम करना चाहते हो तो काम किया जा सकता था। और इंशाअल्लाह अगले 2.5 सालों में, जब 1.5 साल में ये अचीव कर सकते हैं, तो अगले 2.5 सालों में सिर्फ और सिर्फ इस शहर कराची के अंदर बेहतरी ही हो। हमने वाटर बोर्ड के अंदर, जो कि आज मेरा टारगेट नहीं था इसके ऊपर बात करने का, हमने वाटर बोर्ड के अंदर तारीख में पहली बार अपनी आमदनी 2 अरब रुपए से माहाना से एक्सीड की, पहली बार। वाटर बोर्ड कराची में 20 साल बाद A4 आता है, आए कब आएगा? हम अपनी सिंध हुकूमत की मदद से, मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब जरदारी साहब का, सदरातुल जरदारी साहब का, अपने चीफ मिनिस्टर का, वज़ीर बल्दियात का, जो उनकी मदद से हमें पैसे मिले और हम हब डैम से जो नई लाइन लेकर आ रहे हैं, कनाल लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर काम तेजी से जारी है। और 20 साल बाद इंशाअल्लाह कराची शहर के अंदर हब की जानिब से पानी में इजाफा होने जा रहा है। हम लोग वाटर रिसाइकलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। बड़े अरसे बाद कराची शहर के अंदर स्टेब्लिश ट्रीटमेंट प्लांट्स ऑपरेशनल कर दिए हैं। इस वक्त आपका TP3 मौरीपुर जो है वो 54 MGD यानी 5 करोड़ 40 लाख गैलन पानी ट्रीट करके समंदर में फेंकता है। और इंशाअल्लाह जुलाई 2025 तक मजीद 35 मिलियन गैलन, 3.5 करोड़ गैलन हम गटर बागीचा का जो हमारा TP1 है उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट उसकी करना शुरू कर दें। काम तेजी से चल रहा है, आपको लेके चलूँगा एक दिन वहाँ। ये वो सारे फैसले जो हम करें। आखिर में क्लोरिनेशन, उसके ऊपर भी एक बड़ा तमीर आइंदा चंद रोज में हम घोषणा करने वाले हैं। कराची शहर के अंदर 29 डिफरेंट जो क्लोरिनेशन सेंटर्स हैं उनको स्टैब्लिश किया जा रहा है, ताकि जो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं, पानी के जरिए जिन बीमारियों की तरसील होती है, उसकी रोकथाम की जा सके। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ
हम परफेक्ट नहीं हैं, गलतियाँ हम भी कर सकते हैं, हम भी खता करने वाले हैं, लेकिन इस यकीन के साथ कि जानबूझकर गलती नहीं करते, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाएगा, हमारे सूबा सिंध के लिए बेहतर फरमाएगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर फरमाएगा, पाकिस्तान। अच्छा मेरे साथ ये बता दीजिए कि आपने जो बहुत सारी चीज़ें गिनवाई हैं, एक चीज़ मैं बताना मुझे सॉरी है, काम पक्का करता है, ये है माशाल्लाह कांड 922, इसका नाम रखते हैं कांड 222 है, कांड 922। हाँ, या विजन 2019 हमारा विजन है, शहर को हरा भरा करें, डेवलपमेंट करें, इनका विजन था, ऐसी की तैसी करें। अच्छा ये बताइएगा कि ये शायद शहर के मसाइल इतने पेचीदा है, आपने जितनी भी काबिलें गिनवाई है, लेकिन अभी गुज़िश्ता चंद दिन से ही ट्रैफिक हादसा का एक मसला इतना पेश आया हुआ है कि उसमें बहुत ज़्यादा एक जो नेगेटिव परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा सामने आता है, तो उसको कैसे हल करेंगे? गुज़िश्ता में तो आपने एक लेटर भी लिखा है, और दूसरा ये कि जब आप इतनी सारी स्टेप्स स्कीम गिनवा रहे हैं तो जिन दो इदारों की आप सरबराही करते हैं, वाटर कॉर्पोरेशन और KMCB, यहीं पर एंटी करप्शन की आजकल बहुत सरगर्म नजर आती है, क्योंकि क्या मामला है कि यहीं पे इन्हीं जगहों पे क्या करप्शन के भी मामला सुनने में आ रहे हैं? मैं तो कहीं नहीं कहा, कभी नहीं कहा करप्शन नहीं हो रही, अगर तो गलत काम हो रहा है कार्रवाई होनी चाहिए। वाटर बोर्ड पे एंटी करप्शन इंक्वायरी करिए वज़ीर आला सिंध के अहकाम पर, वो रिक्वेस्ट उनको मैंने की थी, उसका कागज़ मौजूद है, आप चाहेंगे आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि मेरा काम किसी की जगहसाई करना, किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, मेरा काम, मेरा टारगेट, हमारा टारगेट ये कि चीज़ों को दुरुस्त करें। तो हमें पॉइंट आउट किया गया कि ये मसाइल है वहाँ पे, हमने कहा इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई कि बदिया उस्मा कराची के MC के ऑफिस में छापा पड़ा, मैं भी कल ऑफिस में मौजूद था, क्योंकि इनफैक्ट मैं MC साहब के ऑफिस भी गया था, मुझे तो छापा नजर नहीं आया, अगर छुप के कोई पोशीदा छापा पड़ गया तो कुछ आगे वही ना जराए, तो खबर चलाने वाले ने शरारत करते हुए जराए लिख दिया था, ताकि कल को जब कोई केस वेस फाइल हो तो वो कह दे कि सर मैंने तो जराए की मैंने कौन सा इल्जाम लगाया। तो पिछले दिनों एक FIR की भी बात चल गई थी, वो FIR जब गौर से पड़ी गई तो FIR में MC साहब इम्प्लीकेटेड नहीं थे, लेकिन वो एक्सीडेंट का एक केस था, वकील का, तो शरारत से उठा करके वो शरारत से इस्तेमाल कीजिए, बाकी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। बाकी तो आपने रोड एक्शन करा, ठीक है, आपका बस चले, लोगों का बस चले, तो वो क्या है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कमी इसलिए आई कि मेरा काम नहीं है, या पाकिस्तान की कर्जेज के बढ़े कि KMC काम नहीं है। ट्रैफिक को रेगुलेट करना मेरा काम है, अगर DIG ट्रैफिक मेरे मातहत हैं, अगर ये जो पुलिसिंग आए दिन आपकी बॉल चौकिंग होती है, आपका सरिया काट के चर्ची ले जाते हैं, उसको रेगुलेट करना मेरा काम है, मुझे आज कहते हैं मैं करने को तैयार हूँ, या और चीज़ें करें ये भी करेंगे, ये काम पुलिस करेगी, और मैं किसी और इदारे के काम में इंटरवीन करने में बिलीव नहीं करता। मैंने जो बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या पिछले दिनों राशिद में नाम जोड़कर हुआ, और पिछले 15 रोज़ में ऐसे कई वाक़यात हुए, मैंने अपनी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि मैं एडिशनल IG कराची को ये बावर कराऊँ कि इस मामले को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और जो भी टाइमिंग कमिश्नर कराची ने अपनी नोटिफिकेशन में तय की गई उसको एनफोर्स कराएं, ताकि दिन के अंदर ये डंपर वगैरह ना चले। जब हुकूमत ने कानून बनाया है, जब एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है 144 तो उसको इन्फोर्स कराना पुलिस की जिम्मेदारी है, और इसलिए मैंने एडिशनल IG कराची को ये बात गुज़ार की, और मैं इंशाअल्लाह वज़ीर दाखिला से भी आइंदा चंद रोज़ में मुलाकात करूँगा और उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ट्रैफिक पुलिस को इस बात को बावर करें कि ये दिन के अंदर ही हैवी ट्रैफिक नहीं चलनी चाहिए, जो नुकसान हमारे शहरियों को होना था हो गया, वो इररिपेयरेबल लॉस है, जिस खानदान का नुकसान हुआ, लेकिन आइंदा किसी के साथ ये ना हो, आज तहिया करें, इसके लिए हम कोशिश करें इंशाल्लाह, और भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे कि इसको हम इन्फोर्स करा सकें। सर लेकिन आप ये तो समझते हैं कि आपने बात की तभी तो वोट वाली, तो क्या ये वोट किसी और जगह शिफ्ट कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं या क्या होगा, इसको सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि सर पंजाब में मरीम नवाज ने शुरू किया है साफ पंजाब, नहीं तजावजात सब खत्म कर रहे हैं, लेकिन पंजाब ने कहा कि अगर हम करें तो शायद इंसानी अलमिया होगा, हमने देख लिया कि वहाँ पर ऐसा कोई इंसानी अलमिया नहीं हुआ, तो आप क्यों इसके पीछे हट रहे हैं, क्या वजह है? पहला सवाल जो आपने पूछा, देखिए हमारा प्लान किसी को उससे उसका हक छीनना नहीं है, वो वहाँ रहते हैं लेकिन कच्ची आबादी में रह रहे हैं, वो प्राइम प्रॉपर्टी है,
उस प्रॉपर्टी के ऊपर 1000 गज की प्रॉपर्टी है, 2 कमरे बने। हम कहते हैं उस 1000 गज की जगह पर एक वर्टिकल प्रॉपर्ली प्लान डेवलपमेंट हो। उस डेवलपमेंट में जो लोग वहाँ रहते हैं, पहला हक उनका है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको रिकवर करने के लिए बाकी चीज़ों को बेचा जाए। मैं तो फेडरल गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा, मैं जहांगीर रोड से गुजरता हूँ तो वहाँ पे जो पाकिस्तान क्वार्टर्स हैं, मार्टिन रोड से गुजरता हूँ, मार्टिन क्वार्टर्स हैं, ये सारी जो फेडरल गवर्नमेंट के पास जिस ज़माने में कैपिटल था कराची, ये प्रॉपर्टी उनके पास थी, आज वहाँ पे बुरा हाल है। एएमसी चाहती है कि इसको वर्टिकली डेवलप करे। जब हम करने जाएंगे तो फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एरिया है, तो हमारा ही है, इसलिए हमने कहा पहले हम अपनी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, क्रेडिबिलिटी क्रिएट करते हैं। पहली जगह डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एक जगह हमने चूज की है, वहाँ हम करने जा रहे हैं, और एक हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ में कच्ची आबादी का चुनाव किया। और इसी तरीके से जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि इल्जाम तो हम फौरन लगाते हैं, तो इल्जाम लगे कोई ना कोई आके कह देगा पता नहीं होता आप क्या करना चाह रहे हैं, तो अंडरग्राउंड टनल अपने लिए बना है। तो इंशाअल्लाह इफ वी आर सक्सेसफुल तो हम इस काम को मज़ीद बड़े पैमाने पर लेके जाएंगे। और मैं फेडरल गवर्नमेंट को ऑफर करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है इसका बुरा हाल है, आप जाके मॉडर्न क्वार्टर का हाल देख लें, पाकिस्तान क्वार्टर का हाल देख लें, कहीं से आपको लगता नहीं है कि अच्छी सूरत हाल है। हम उसको प्रॉपरली टाउन प्लानर्स के साथ बैठ के, आर्किटेक्ट के साथ बैठ के प्लान करके डेवलप करना चाहते हैं, प्रोवाइडेड दे सपोर्ट अस, क्योंकि अदरवाइज मैं नहीं चाहता कि हम लड़ाई झगड़े में पड़ जाए। जो आपने कहा साफ सुथरा, या मेरा टारगेट है साफ सुथरा कराची हो, देखिए हमें कहीं ना कहीं बैलेंस ड्रॉ करना होता है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव 2 तरह की होता है, एक सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है, एक परमानेंट इंक्रोचमेंट। आप कोई भी इंक्रोचमेंट रिमूव करोगे उसके बाद एक मुतबादिल होना चाहिए। अगर आप मुतबादिल नहीं लोगे उनको तो वो सड़क पर आके बैठेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपकी सड़क के हवाले से, तो हम काउंसिल के जरिए तमाम सियासी जमातों के साथ बैठ रहे हैं, और कुछ हमने अभी आपको पता नहीं, हम बैकग्राउंड में बैठ के काम कर रहे हैं, मैं और वजीर बंदियात उसके ऊपर, जिसके अंदर हम तमाम सियासी जमातों से रीच आउट करें 3 पॉइंट एजेंडाज पे। कि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जो हमारी सड़कों पे है उसको उसका पहला कमा करें, जो वॉल चॉकिंग की जाती है उसका पहला कमा करें, और तीसरा जो झंडे लगाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, उसकी कुछ शराइत कि लगाया आपने कोई इवेंट हो रहे, लगा के 1 हफ्ते बाद हटा दें। ये नहीं हो सकता कि वो झंडा आपका लगा हुआ है, बैनर आपका लगा है, उधड़ गया फिर भी लहरा रहे हैं, राइट। तो इसके ऊपर हम काम करें, और हम तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसके बाद अच्छा कंसेंसस बिल्ड हो जाएगा, और फिर हम इन चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव रेगुलरली चल रही है, लेकिन हमारा टारगेट इस वक्त ये है कि मैं चाहता हूँ कि ह्यूमन क्राइम कम से कम हो। हम एक ऐसी सियासी जमात हैं जो लोगों के बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के ऊपर बिलीव करते हैं, तो हम वो बैलेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले केस में वो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को क्लियर करें, और उसके बाद फिर वो हार्ड इंक्रोचमेंट की तरफ। सर आपने हादसात की जो बात की, तो आप नहीं समझते कि जो कराची शहर में सड़कों की सूरत हाल है वो भी एक हादसात की बड़ी वजह है। लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, फिर उनको जहाँ खुला रास्ता मिलता है वहाँ पे वो स्पीड जो है वो बढ़ाते हैं। आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जो है वो मुकम्मल होने की बात की, तो आप थोड़ा बताएंगे जो कराची की सड़कों की सूरत हाल है उनको कब बेहतर जो है वो किया जाएगा, खासतौर पर अगर यूनिवर्सिटी रोड वाले प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वो चीज़ें जो है वो कब बेहतर होंगी ताकि वो ट्रैवलिंग में आसानी हो। राशिद नाम रोड पर ये वाकया हुआ, वो इलाका किसका है? कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल का इलाका है, रोड फर्स्ट क्लास है। बहुत सारे पुलिस वाले हमारे दोस्त कहते हैं सर आप सड़कों को ठीक कर देना तो एक्सीडेंट नहीं होगा, आप ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर बना देना तो ये हेरोइन की सड़क पर नहीं होगा। सर हो सकता है वो यूनिवर्सिटी रोड पे फंसा और राशिद मनाज रोड पे उसने स्पीड टेस्ट कर ली, हो सकता है। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ, देखिए आवाम जो है ना आपसे प्रॉब्लम नहीं सुनना, सोल्यूशन सुनना चाहती है ना, राइट। उसको आप कहते हैं सड़क टूटी हुई इसलिए मैं ट्रैफिक को रेगुलेट नहीं कर पाया। मैं कह दूं केएमसी के पास स्पेशलिस्ट मैं मेयर नहीं बनता। आप कह दें कि मुझे जो है मेरे इदारे ने अच्छा राइटिंग पैड नहीं दिया, पेन नहीं दिया, मैं सवाल नहीं लिख सकती, या वो ये इससे मैं बाहर निकलना होगा। मेरा ये मानना है कि अगर ट्रैफिक पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभानी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना निभाएं।
अगर हुकूमत का नोटिफिकेशन है, कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन है कि दिन के अंदर डंपर नहीं चलेगा, हेवी ट्रैफिक नहीं चलेगी, तो उसको इन्फोर्स कौन कराएगा? साहसी कराएंगे? नहीं। केएमसी कराएगी? नहीं। टाउन करेगी? नहीं। कौन कराएगा? ट्रैफिक पुलिस को कराना है, पुलिस को कराना है। तो दे मस्ट डू देयर जॉब। ये नहीं हो सकता कि ट्रैफिक पुलिस वाले कह रहे हो कि यार म्यूनसिपैलिटी का काम हम कर लेते हैं, सड़क हम बना देते हैं। मैं आई थिंक ट्रैफिक पुलिस वालों की वीडियो देखता हूँ तो वो कहते हैं अपनी मदद आप पे हम गड्ढों को भर रहे हैं। ये वाले काम अगर मैंने बताने शुरू कर दिए कि मैं अपनी मदद आप पे क्या करूँ या सलमान क्या करे, हम सब क्या करें, इसके पहले हमें अपने हाउस को ऑर्डर करने के लिए हम अपना काम करें फिर दूसरा काम करें। तो मैं ये जो बार बार ये कहा जाता है मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, विद ग्रेट रिस्पेक्ट। अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि इतने बजे से इतने बजे बैन है, हेवी ट्रैफिक नहीं चलेगा, देन इट इज आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज गवर्नमेंट, एज लॉ एनफोर्सर्स, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको नंबर 2 आपने यूनिवर्सिटी बोर्ड की बात की। मैं एक बार नहीं कई बार इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेजर प्रॉब्लम है शहर। मैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट के साथ रेगुलरली इस मामले पर इंगेज करके बैठा हूँ। 2 साल मुझे कहा गया है कि जून 2026 तक ये रेड लाइन का मंसूबा मुकम्मल होगा। उम्मीद ये कर रहा हूँ, दुआ ये कर रहा हूँ दे रहे हैं। और जहाँ जहाँ इस वक्त पैच वर्क रिक्वायर्ड है, हम उन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बात करें, इस पैच वर्क के ऊपर काम करें ताकि लोगों को तकलीफ को कम से कम की जा सके। लेकिन अगर ये डायरेक्टली मेरे अंडर चीज़ नहीं है, इसलिए मैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पर बात का नजर आ रहा है, वो बार बार यही कह रहे हैं कि पूरी कोशिश है इंशाल्लाह कि 2026 जून तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाए। अच्छा सर, पाबंदी तो ट्रांसपोर्ट्स का भी है, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट्स के दफातर खुले हुए हैं, उनके नाम से पूरा सिस्टम चल रहा है। ट्रक्स आके जैसी दिहाड़ी है गाड़ी मोटर खड़ी होती है। एक तो ये इशू ये कि उसकी वजह से हैवी ट्रैफिक है वो शहर के अंदर काफ़ी होती है। केएमसी की जानिब से ट्रक अड्डा बनाया गया, मणिपुर वहाँ पर उन्हें मुंतकिल किया गया, लेकिन दफातर आप भी यहाँ पर जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। दूसरा सवाल ये कि 922 मुलाजिमों का आपने जो जिक्र किया है, इस हवाले से बताइएगा मुलाजिमीन 937 को जो मुलाजिमीन है, क्या उनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी या उन्हें अपॉइंट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहली चीज़ तो ये कार्रवाई होगी नहीं होगी, ये फैसला मैं नहीं करूँगा। मैं डेमोक्रेटिक तरीके से, कानूनी तरीके से इस मामले को काउंसिल में लेके जाऊँगा। काउंसिल फैसला करेगी, अगर काउंसिल फैसला जो करती है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके अंदर दोनों चीज़ों को देखा जाएगा। नेचुरली अगर मैं मुलाजमत ले रहा हूँ तो मुझे तो मुलाजमत चाहिए। पहला सवाल तो सरकारी अफसर से होना चाहिए ना कि भाई आपने किस बेसिस के ऊपर दे दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब मैं 1.5 साल से भी मेयर हूँ, टोटल बंदे तो मैं अगर आपको ऐसी शेयर भी नहीं करूँगा, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये है 2018 का खर्चा, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। 2019 का ये एक पेज है, ये 2020 का एक पेज है। यानी कि नॉर्मल रूटीन की जो मुलाजमत होती है, डिसीज कोटे पे आपने किसी को नौकरी दे दी, वो 10, 12, 15, 20 होती है, तो क्या फाइनेंशियली उसको आप सस्टेन भी कर सकते हैं। मैं भी बैठा हूँ केएमसी के अंदर 1.5 साल से मैंने एक परमानेंट मुलाजमत नहीं की है, जहाँ बिल्कुल ही अर्जेंट इमरजेंसी रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का बंदा भर्ती करे, वो 89 डेज वाला जो टाइप होता है या कॉन्ट्रैक्चुअल होगा, ताकि आपको पेंशन का ये लॉन्ग टर्म का प्रॉब्लम ना हो। तो मैं सिर्फ बता ये रहा हूँ कि जिन ने गलती की है सज़ा मिलने से कम अज़ कम एतराफ़ तो हो जाए। हमें वैसे जो कौम वैसे जो मुआशरा अगर आगे बढ़ना है तो बस तुम अब ये तो हम कहना शुरू करें ना, शहर में कोई खराबी नहीं, इस शहर के इदारों में कोई खराबी नहीं। सिर्फ जो लोग बराजमान थे उन्होंने जो ज्यादती की है उनको इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि सॉरी बॉस, बैड हो जाएगा। मेरे साहब आपने जो है ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो बना है, ट्रांसपोर्ट का मसला, इसमें बहुत सारी हमारी ऐसी ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर कब्जा है, जहाँ भी अड्डे बन सकते थे, इसको हमने टेकअप किया हुआ है, जहाँ हम और मजीद चीज़ों को रिफॉर्म करें। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में BOT बेसिस के ऊपर कुछ और हम अड्डे स्टैब्लिश कर रहे हैं ताकि शहर के अंदर कोई एक कंडीशन है इसको एड्रेस किया जा सके। मेरे साहब आपने शहर में ट्रैफिक के मसले से निपटने के लिए AID एक्सप्रेस को हैवी ट्रैफिक शिफ्ट करने की एक पेशकश की थी, वज़ीर आज़म से ये बात की, थर्ड पार्टी आपने सर्वे भी उसका कराया, लेकिन सुना कोई सियासी मुखालफत आई जिसकी वजह से मामला आगे नहीं बढ़ सका। तो क्या ये आपकी जो तजवीज़ की अब काबिल अमल नहीं रही है, ख़त्म हो गया है मामला? काबिल अमल तो है, लेकिन अगेन फैसला तो प्राइम मिनिस्टर साहब को करना है।
प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले हमारी बात से इत्तफाक की इजाज़त दे दी, फिर उनके सियासी हरीफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट किया, उन्हें रोक दिया। मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों को ये कहना चाहूँगा, ये शहर हम सबका है शहर, लेकिन आप वो डंपर राशिद मनाद रोड से गुजर सकते हैं और कहते हैं कि राशिद मनाद रोड सेफ है, लियारी एक्सप्रेस वे सेफ नहीं है। यही आर्गूमेंट है ना। तो आप देख रहे हैं अभी वो हेवी ट्रैफिक जो है मौलीपुर रोड से होता हुआ, जिना ब्रिज से होता हुआ, एमटी खान रोड, माइक कुलाची, सनसेट बुलेवार्ड, कोरंगी रोड, भरूच कॉलोनी एक्सप्रेस वे, शाह फैसल, शाह दारुल उलूम, लाठी की रोड से होता हुआ इवेंचुअली आप कंट्री जाता है। तो मैं तो भी एक और चीज़ अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर एक PC1 भेज दूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब को, कुछ 32-33 अरब रुपए का नॉर्दर्न बाईपास का स्पेशल रूट बनाया फेडरल, हैवी ट्रैफिक वहाँ से जाए। ये नहीं हो सकता यार कि हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहनों के साथ इस तरह की चीज़ होगी। फोटो खिंचाने से तो मसला हल नहीं होगा ना, इसका एड्रेस तो इसी तरीके से होना है। तो फेडरल गवर्नमेंट मस्ट फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन, उनको इन्वेस्ट करना चाहिए शहर के अंदर। और इस बात पे मैं लगा हूँ, इंशाल्लाह कोशिश मेरी PC1 फाइनल हो जाएगा, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजेंगे। और मैं ये भी ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, मेरी लास्ट मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब से जो हुई थी उसमें बिलावल साहब और मैं मौजूद थे। बिलावल साहब ने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, मेयर साहब का हाथ था कराची के डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे वादा किया था आप मुझे स्कीम भेजें, मैं आपको वो अप्रूव करके देता हूँ। तो अभी तो स्कीम उन्होंने PIDCL के कुछ हवाले कर दिए हैं, KMC के लोगों को शायद कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी मैं नॉर्दर्न बाईपास की कह रहा हूँ, चलो खुद बना दो, बनाओ, A4 की तरह नहीं बनाना, बना देना। ये जो एमेजना रोड उधेड़ी हुई है ना, उसकी तरह नहीं बनाना, मंगोपी रोड की तरह नहीं बनाना, सही से बना के दे दो। ये हमारे शहर के आवाम का भी हक। अच्छा मुर्तज़ा भाई ये बताइएगा, मुर्तज़ा भाई ये बताइएगा, अगर हम MQM की सियासत को अभी लें, MQM की सियासत को अगर हम देखें तो वो तनकीद बराए तनकीद है। गुज़िश्ता दिनों भी उनके चेयरमैन ने एक प्रेस